Hello everyone, welcome to the online classes. Today we shall study the second chapter of Vistas. The name of the chapter is The Tiger King, written by Kalki. The story The Tiger King is a satire on the society. It's also a satire on the conceit of those in power. बच्चों, मैं आज आपको द टाइगर किंग कहानी पढ़ाऊंगी। ये एक व्यंग है। व्यंग किस पर है? सटायर किस पे है? सटायर ऑन द सोसाइटी, समाज पर व्यंग है। एंड सटायर ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज इन पावर, यानी जो लोग सत्ता में है, जिनके पास शक्ति है, उन पर एक व्यंग है। द स्टोरी इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरनैचुरल ह्यूमर एंड आयरनी। द टाइगर किंग हैज बीन मैजिकल फ्रॉम हिज बर्थ. His arrogance takes him on a path of destruction of the tiger population. He is too much power drunk to notice the havoc he has created. His minions are scared of him and fail to guide him. इसमें जो बाघ राजा है, जो टाइगर किंग है, वो सत्ता के नशे में इतना चूर है कि उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कितना ज्यादा हैवक क्रिएट कर दिया है। और उसके जो सबऑर्डिनेट हैं, यानी उसके जो कर्मचारी हैं, वो इससे उतना डरे हुए हैं कि वो उसको सही पथ पर गाइड नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, द महाराजा और द टाइगर किंग. He is a comical and eccentric character who behaves like an autocrat and kills tigers blindly. The Diwan, he is the comedian in the story who resorted to a falsehood to save his job. The chief astrologer, he had deep knowledge of astrology. He was logical but a little foolish at predicting people's fate. Let's overview the chapter. The Maharaja of Pratibandhapuram is known by the name of the Tiger King. यानी प्रतिबंधपुरम के राजा को टाइगर किंग नाम से जाना जाता था. When he was born, the astrologer foretold that he would grow up to be a warrior of warriors, champion of champions, and a hero of heroes. But one day he will have to meet his death. जब इस राजा का जन्म हुआ तो ज्योतिष ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा बहादुर वीर बनेगा, लेकिन एक दिन इसको अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा. At that very moment a miracle took place. The baby prince, who was only 10 days old, asked the astrologer in a loud, clear voice that he only wanted to know the manner of his death. The chief astrologer told him that because he was born in the hour of bull, the reason of his death would be a tiger. तो इस पर वो बच्चा राजकुमार जो मात्र कितने दिन का है, 10 days old है, वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो पैदा होगा वो तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही, केवल आप मुझे ये बताइए कि मेरे मृत्यु का कारण कौन बनेगा. इस पर ज्योतिष कहता है उससे कि चूंकि आपका जन्म वृष राशि में हुआ है तो इसलिए आपको बाघ से खतरा है. The child was not even scared. वो राजकुमार बिल्कुल भी नहीं डरता. In fact, he warned the tigers to be on their guard and beware of him. इसके बजाय वो बाघों से कहता है कि बाघों तुम अपनी रक्षा करो, अब मैं आ गया हूं. Prince's childhood and the killing of the first tiger. बच्चे का बचपन और उसका पहले बाघ को मारना. The crown prince grew taller and stronger day by day. His childhood was uneventful as compared to his birth. राजकुमार धीरे धीरे बढ़ता गया और काफी स्ट्रॉन्ग हो गया और बाकी उसका बचपन एक सामान्य बच्चे के बचपन की तरह रहा. He was crowned the king at the age of 20. 20 वर्ष की उम्र में उसे राजा का राजमुकुट पहनाया गया. The astrologer's prediction slowly reached his ears.
अब राजा के कानों में भी ये बात पहुंची कि मेरे जन्म के समय मुझे बाघों से खतरा बताया गया था। He went on a tiger hunt and killed his first tiger. तो राजा ने बाघ के शिकार की शुरुआत करी और अपना पहला बाघ मारा। Elated by his feat, he sent for the state astrologer. अपनी जीत से बहुत ज्यादा खुश होकर उसने ज्योतिष के पास संदेश भिजवाया। The astrologer again warned the king that the prophecy was right. He might kill 99 tigers, but the 100th tiger would prove to be fatal for him. इस पर ज्योतिषी ने कहा कि इस तरीके से आप 99 बाघ तो मार लेंगे, लेकिन 100वां बाघ आपके लिए खतरा होगा। The tiger hunt begins. The Maharaja banned tiger hunting in his kingdom. The king was adamant to prove the prediction wrong and vowed to attend all other matters only after killing 100 tigers. The Maharaja faced many dangers on his quest. तो राजा ने अब यह प्रतिज्ञा ली कि अब मैं बाकी राजकाज के काम बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं 100 बाघ मार लूंगा, क्योंकि 100वां बाघ राजा के लिए खतरा है, उसकी जिंदगी के लिए खतरा है। और इसी क्रम में राजा को अनेकों बार अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क्स, द टाइगर लेप्ट अपॉन हिम एंड ही हैड टू फाइट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। Each time it was the Maharaja who won. तो इन सब के बावजूद भी हर बार वो राजा ही होता जो कि जीतता। Once a high-ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम with a wish to hunt tigers. एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर आया और उसने राजा के प्रतिबंधपुरम राज्य में बाघ मारने की अनुमति चाही। The Maharaja refused permission. Now he stood in danger of losing his kingdom. As a bribe, 50 diamond rings were sent to the officer's wife, expected that she would choose 1 or 2 rings. But the greedy lady kept the whole lot. The bribe cost him 3 lakhs rupees, but the kingdom was saved. तो उसको एज अ ब्राइब अब ये हो गया कि ये अंग्रेज ऑफिसर तो नाराज हो गया है, तो हो सकता है हमारे राज्य में कुछ संकट आ जाए, तो उसको खुश करने के लिए उसकी बीबी के पास 50 डायमंड रिंग भेजी गई कि इस उम्मीद के साथ कि ये इसमें से 1-2 छांट लेगी। लेकिन वो ग्रीडी लेडी ने सारी की सारी 50 डायमंड रिंग्स रख ली। लेकिन चलो जो भी हो, राजा का राज्य बच गया। The Maharaja's tiger hunts were very successful. Within 10 years, he had killed 70 tigers. As a result, the tiger population became extinct in Pratibandhapuram. Now, the Maharaja ordered the Diwan to find a princess of a royal family as his bride in any other native state with a large tiger population. The Diwan followed the order and found the right girl for him. अब इस प्रकार राजा का जो ये टाइगर हंट है ये काफी सक्सेसफुल रहा और उसने राजा ने विद इन 10 years he had killed 70 tigers. 10 सालों में उसने 70 टाइगर्स मार दिए। अब टाइगर्स उसके राज्य में खत्म हो गए, तो उसने अपने दीवान को ये ऑर्डर दिया कि आप महारानी बनाने के लिए एक ऐसी राजकुमारी को ढूंढिए जिसके राज्य में बाघों की संख्या अच्छी खासी बाघों की संख्या हो। तो दीवान ने उसके लिए राजा के लिए सही लड़की का चुनाव किया। सही लड़की का मतलब जिसके राज्य में बाघ काफी हो, क्योंकि राजा को अपना कितना टारगेट पूरा करना है, 100 टाइगर्स का। The Maharaja killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this way, the Maharaja killed 99 tigers. Now, there were no tigers left in his father-in-law's kingdom. Now, only 1 tiger remained to be killed. तो फिर वहां भी उसने काफी बाघ मार लिए और हर बार जब वो अपने ससुराल जाता तो 5 से 6 बाघ को मार देता। तो इस प्रकार राजा ने 99 बाघ मार दिए। Only 1 tiger remained to be killed. अब कितना उसका टारगेट पूरा होने में कितने बाघ बचा? Only 1, एक बाघ उसको और मारना था। The Maharaja was sunk in gloom as he was unable to find the last tiger. The Maharaja became very furious and asked the Diwan to resign.
The Diwan, to save himself, decided to leave the old tiger that had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब दीवान की समझ में नहीं आया कि मैं अपनी नौकरी कैसे बचाऊं, तो उसने मद्रास के द पीपल पार्क से एक बाघ लिया जो काफी बूढ़ा था और अशक्त था, और उसको अपने घर में छुपा के रख दिया। और उसने योजना क्या बनाई कि जहां पर राजा टाइगर हंट के लिए जाएगा वहां पर मैं इसको छोड़ दूंगा और राजा इस समय बाघ को मार लेगा और राजा फिर निश्चिंत हो जाएगा। द दीवान took the tiger to the forest where the Maharaja was hunting. The Maharaja took careful aim and fired. The tiger fell in a crumpled heap. Actually, the bullet had missed the tiger. The tiger had fainted from the shock of the bullet whizzing past him. तो दीवान जो है वो उस बाघ को लाता है और जहां पर राजा शिकार कर रहा होता है वहां पर छोड़ देता है। राजा उसे देखता है, उसे टारगेट करता है और बुलेट चलाता है, लेकिन एक्चुअली वो बुलेट मिस हो जाती है और वो जो बूढ़ा और अशक्त बाघ था वो उसकी विजिंग साउंड से ही फेंट हो जाता है। द हंटर्स डिडंट डेयर टू टेल दिस टू द किंग, and after the Maharaja left, one of the hunters shot the tiger himself. अब जो और शिकारी थे वो राजा से ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि राजा आपने तो ये बाघ मारा ही नहीं है। और जब राजा वहां से चला जाता है तो उसमें से एक शिकारी उसको खुद अपनी बंदूक से बुलेट से मार देता है। When Maharaja thought that he had killed the 100th tiger, he was filled with boundless joy at fulfilling his oath. अब राजा को जब ये लगता है कि मैंने आज 1.25 बाघ मार दिया तो राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। He ordered the tiger to be brought to the capital in a grand procession. The dead tiger was taken in grand procession through the town and buried. A tomb was erected over it. तो राजा कहता है कि इसको गाजे बाजे के साथ इसको शहर लाया जाए और उसके बाद उसको उसके ऊपर उसको दफन कर दिया जाता है और उसके ऊपर एक गुंबद बना दिया जाता है। पर बच्चों, टेक्निकली तो राजा ने अभी 1.25 बाघ मारा ही नहीं है, क्योंकि ये जो 1.25 बाघ था ये तो खाली फेंट हो गया था। आफ्टर अचीविंग द फीट, The Maharaja turned his attention to his child. अब राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली तो राजा अब अपने बच्चे पर ध्यान देता है। On his 3rd birthday, he bought a wooden tiger for him. वो उसके लिए एक लकड़ी का खिलौना बाघ लेके आता है। The wooden tiger was carved by an unskilled carpenter. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. One of the slivers pierced the Maharaja's right hand while he was playing with his son. तो वो एक अकुशल बढ़ई ने बनाया होता है और उस लकड़ी के बाग में फांसें निकली होती हैं और एक फांस जो है वो राजा के हाथ में चुभ जाती है जिस समय वो बच्चे के साथ खेल रहा होता है। The Maharaja didn't mind it, it pulled it out. राजा उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता और उस फांस को निकाल देता है। The next day infections spread in his hand. लेकिन अगले दिन राजा के हाथ में इन्फेक्शन फैलता है, संक्रमण फैल जाता है। In 4 days it developed into a poisonous sore which spread all over his arm. और चौथे दिन उसका जो जहर है वो राजा की पूरी बाह में फैल जाता है। 3 surgeons from Madras operated on him but were unable to save his life. 3 सर्जन आते हैं मद्रास से, वो उसका ऑपरेशन करते हैं लेकिन वो राजा का जीवन बचा नहीं पाते। Thus the 100th tiger took its revenge and the astrologer's prediction about the death of the tiger king proved to be correct. तो इस प्रकार राजा की मृत्यु 1.25 बाघ से होती है, यद्यपि ये 1.25 बाघ लकड़ी का है ना बच्चों। कितनी आयरनी, इट्स आयरनी ऑफ फेट। और राजा के बारे में जो ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये 1.25 बाघ इसके लिए खतरा होगा, वो क्या हो जाती है, प्रूव्ड टू बी करेक्ट। In this story, the author wants to tell us that killing innocent animals for fulfilling one's whim and fancies is wrong and sinful. इसमें बच्चों जो ऑथर लेखक ये हमसे बताते हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए इन निर्दोष जानवरों का जो हत्या करते हैं, उन पर हिंसा करते हैं, ये गलत है और ये पाप है। Death is common to all and all beings have the right to life.
मृत्यु तो स्वाभाविक है, ये कॉमन है, ये सबके लिए है और हर प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है. वी आर नोबडी टू टेक अवे अदर्स लाइफ. We need a revolution to save our planet and its ecological heritage. हमें अपने इस प्लेनेट को बचाना है और इसके इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है. This brings us to the end of the chapter. Keep learning, keep practicing. Thank you.